welcome to BU Care, Your Care Comes First. We are back with yet another video as today we are celebrating Doctor's Day. For today, I am Shivani Barade as a host, and BU Care is an initiative by Brilliance in You to spread the awareness regarding health and fitness. Brilliance in You is an international open community for emerging technologies like blockchain, AI, ML, learning, computer vision, cybersecurity, and forensics. So, as I told, today we are celebrating National Doctors Day. So, on behalf of Brilliance in You, I would like to congratulate all the doctors out there who are striving day and night due to this pandemic. So, for today's guest, we have Dr. Rajeshri Singh. Rajeshri Singh. So, her profile is she is an Ayurvedic consultant, weight management, and chronic disease expert. So, would you like to share some thoughts about today? I mean, the Doctor's Day. Would you like to say something? See, it's a wonderful feeling that people are celebrating Doctor's Day today, and people are continuing messaging me, calling me, Doctor, बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब it's quite great day. Like people are celebrating when डॉक्टर्स को पूछता ही कौन है जल्दी से. Until unless आप बीमार नहीं है, हम तो चाहते ही नहीं कि किसी को भी डॉक्टर्स की जरूरत पड़े, लेकिन until unless लोगों को जरूरत नहीं है, या आजकल का सिनारियो ऐसा हो गया है, लोगों के बीच में मिथ ऐसा आ गया है, काफी कुछ ऐसा चल रहा है कि लोग डॉक्टर से डर भी जाते हैं. वो कहावत सुनी ना डॉक्टर की दोस्ती अच्छी, ना पुलिस की, ना वकील की. तो फिर लेकिन अभी अच्छा है आज, और काफी टाइम से मतलब पिछले कई दशकों से डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करें, तो महसूस होता है कि हाँ, वी आर ऑल्सो हैविंग सम स्पेस इन पब्लिक. अभी लोग अच्छा ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, वरना लोगों को पहले से ही व्हाइट कॉलर जॉब है और डॉक्टर होना अपने में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग थोड़ा कतराते हैं. डॉक्टर हैं, ठीक है, बहुत चार्ज करते होंगे, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है. That's great. Great. First of all, I would like to wish you happy Doctor's Day for contributing your whole life for us. So a great thank you to you and all the doctors. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, doctor. So I would like to ask you a few questions. So first question is that what is your inspiration for choosing healthcare profession? See, there are many inspirations. I can't say I have one inspiration, but the basic inspiration was my parents. They belong to Gayatri Parivar, and they keep on discussing about herbs and Ayurvedic medication. So I am the child from the background of family who is always been treated with natural kind of things, और जिसको हम alternative medicines भी कह देते हैं. तो होता क्या है कि उन्होंने बचपन से ही वो एक सीडलिंग डाल दिया था अंदर, like you have to become a doctor. और कुछ ऐसा जब आपकी फैमिली कुछ पूजा पाठ में होती है ना, आपकी सराउंडिंग भी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी वाली होती है, देन यू टेंड टू हेल्प पीपल. व्हेन यू आर हेल्पिंग पीपल, इंटरनली आपके अंदर से वो आ ही जाता है कि मैं और ऐसा क्या करूं. देन आई स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर. सो आई एम डॉक्टर. Nice. It's great. So what struggles doctors face while serving the society? Pardon? What struggles do the doctors face while serving the society? What are your views on that? If we talk about the last 20 years, doctors were very easygoing, और उनके साथ ऐसा कोई problem नहीं था. But I don't know, maybe some people will be feeling offended with this sentence. Like right now, people are using Google, and they keep searching over Google, and Google Baba is telling about everything, and single medication, what are the interactions, what are the preventive measures, or what are the reactions of different medications. So patients जब पढ़कर आते हैं ना Google से, then they keep asking. तो आजकल के डॉक्टर्स बहुत फेस करते हैं ये इशू कि when patient keep asking why you have prescribed me doctor this, because this medication is having such kind of pros and cons. But they never look after the process over whatever the process of medication. They look over the cons of the medications, and they keep yelling over doctor. See, they keep thanking also if some patient get their health is okay and they are treated well. They will give you, they will greet you, they will thankful to you. But
if something happens, see, doctors are not god na, they can't do everything by their own, there is some supreme power also. तो क्या होता है अगर if some mishappening happens with the patient, तो क्या होता है कि पेशेंट के जो घर वाले हैं वो भी काफी ऐसे हो मतलब वायलेंट हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट अब्यूजिंग, किकिंग, और ऐसे बहुत सारे केस, इफ यू कैन सर्च गूगल और न्यूज headings, you can find out what happened. Nowadays we know this is a very pandemic situation, but still there are people on patients around us or on the news, they are asking like the doctors are charging us too much, hospitals are charging us too much, there is no bed available, all such kind of blah blah. But they should understand what a doctor is going through all these things, and whatever the things, as I told you before, whatever things is given over Google, it's not as relevant as we have studied during our education time. So people should think कि Google पे इतना reliability आपको नहीं करना है. Google एक headache को भी कैंसर तक पहुंचा देगा, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, एक समझदार, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, अगर आपको हेडेक है तो वो हेडेक का ही ट्रीटमेंट करेगा, वो आपको डराएगा नहीं. So these are the few things which kind of means doctors are facing right now. It's very it's like as a suffocating situation. Very much relevant thing you said, because even I have seen people like they just Google it and they say नहीं ये डॉक्टर के पास भी जाने, यहाँ पे रेटिंग बहुत कम है, ये लिखा हुआ है उसके बारे में, so let's search for another doctor, so they don't go actually. नहीं, और होता भी क्या है ना, अभी आप देखो रिव्यूज का एक बहुत अच्छा, मतलब आप ऐसे देखो किसी स्टोर में आप जा रहे हो, आप शॉपर स्टॉप जा रहे हो, आपको ड्रेस पसंद आ गई, आपने बहुत अच्छा रिव्यू किया, लेकिन हाउ कुड यू रिव्यू अबाउट अ डॉक्टर? डॉक्टर इज नॉट अ गॉड, एज आई टोल्ड यू बिफोर, है ना. तो अगर आपने 10 पेशेंट अच्छे कर दिए, लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसकी एलिमेंट कुछ नहीं, या फिर उनका डिसऑर्डर या डिजीज इतना तगड़ा था कि हमने उसकी बहुत कोशिश की लेकिन जान नहीं बचा पाए, हम तो नहीं कुछ कर सकते. देयर इज अ सुप्रीम पावर ऑल्सो. तो जो उसका एक रिव्यू बना लेते हैं ना, नहीं वो डॉक्टर तो बहुत घटिया दवाइयां देते हैं, वो डॉक्टर तो ऐसे कर देते हैं, मार देते हैं, या गायनोकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ सीजर ही करती है, वो कुछ और नहीं करती. तो ऐसे जो रिव्यूज आते हैं ना, एक डॉक्टर के करियर को बना भी सकते हैं और डॉक्टर के करियर को खराब भी कर देते हैं. तो मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि प्लीज ऐसी बातों से आप दूर रहिए, पहले आप अपने डॉक्टर को समझिए, जानिए. तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग ड्रास्टिकली, बहुत चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी पूरे बूम में है, सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है. So what do you think how health professions are changing with time? Pardon? Health profession? Health professions are changing with time. See, there is lot of changes if I tell you. अभी देखा जाए तो पहले पेशेंट्स को नंबर लगाना पड़ता था, है ना. आप जाओ, आपको पता नहीं कि डॉक्टर्स के पास कितना वेटिंग चल रहा है, एंड यू आर सिटिंग इन द क्यू एंड वेटिंग फॉर योर टर्न. आज की डेट में देयर आर एप्स, आप वहां से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली बात हो जाती है. आपका अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स है, आप जा सकते हो. अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, तो अगर टेक्नोलॉजी ने, जो आईटी सिस्टम है, इसने हमें इतना हेल्प किया है कि there are patients who are not getting beds, who are not getting hospitalized, और हॉस्पिटल में स्पेस ही नहीं है, तो वो घर पे होम क्वारंटीन है. तो क्या ऐसे में वो डॉक्टर्स को फिजिकली जाकर नहीं मिल सकते. बट थैंक यू टू द इंटरनेट एंड थैंक यू टू द ऐप मेकर्स, जिन्होंने ऐप बनाया, जैसे आपका जूम हो गया, या फिर और दूसरे ऐप्स हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लोग यहाँ से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपको नॉर्मल वॉइस ओवर कॉल्स कर सकते हैं. नॉर्मल कॉलिंग से आपको, आजकल डॉक्टर क्या है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में डॉक्टर्स अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं. जिन डॉक्टर्स की हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी हुई है, वो तो बेचारे पूरा टाइम वहां दौड़ ही रहे हैं, सारा टाइम घर पे भी जाना उनका मुश्किल है. लेकिन जो डॉक्टर्स घर में, या जिनकी स्पेशलाइज्ड ड्यूटी इसलिए लगी है कि जो होम क्वारंटीन पेशेंट है, आप उनको हर 4-5 घंटे बाद उनको कंसल्टेशन देना है, तो वो ऑनलाइन आकर उनकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अब आप ऐसा कर लो. और क्या होता है, जब हम वॉइस ओवर कॉल करते हैं तो ठीक है, हमें वॉइस सुनती है, हमें उसका एक टचेबिलिटी की फीलिंग नहीं आती. अब जैसे हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वी कैन सी ईच अदर. तो ऐसे क्या होता है, होम क्वारंटीन वाला पेशेंट जब अपने डॉक्टर को देखता है, और वो ऊपर से नीचे तक आप दिखा सकता है कि देखो मुझे ऐसा है, या उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, उसको कुछ भी ऐसा सिम्टम हो रहा है मेडिकली, तो डॉक्टर उसको देखकर बता सकता है, अच्छा ये टेस्ट कर लीजिए, अच्छा आप ये ले लीजिए.
मतलब XYZ जितनी भी तरीके की उस टाइम पे अप्रोप्रिएट मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, और पेशेंट जो उसको अवेलेबल कर सकता है अपने लिए। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा हेल्प किया है। अगर हम देखें पहले के टाइम में डॉक्टर्स पेशेंट की सिचुएशन को देखते थे, उनके साइन एंड सिम्टम्स को देखते थे। अभी क्या है, टाइम के साथ साथ बीमारियां भी बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व हो गई, उनका भी स्वरूप बदल गया। कुछ के सिम्टम्स आते हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो मार्केट में बहुत तरीके के टेस्ट हैं। पहले थोड़े टेस्ट अवेलेबल थे, अब क्या है, हम काफी अंदर तक टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी स्कैन हो सकते हैं, MRI हो सकते हैं। दीज टेस्ट आर हेल्पिंग द डॉक्टर्स टू मच कि वो जो चीजें हमें फिजिकली नेकेड आई से नहीं दिख सकती, हम वो भी देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, और अपने पेशेंट्स को एक प्रॉपर अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। वेरी ट्रू। अभी as you said, COVID is like सब जगह है and everyone is frightened. Yeah. So as due to COVID-19, the front fighters are the doctors first of all. So how it has affected the personal and the professional life of the doctors? How is it affected? I mean, I just can't think about it. अगर मैं बात करूं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की, तो दोनों ही बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। अफेक्ट क्या मैं कह सकती हूँ कि आहत हुए हैं। होता क्या है, हॉस्पिटल्स में जनता को ऐसा लगता है कि दे आर द फ्रंट वॉरियर्स, और ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप एक डॉक्टर से, एक नर्स से, एक लैब टेक्नीशियन से, इवन एक फार्मासिस्ट से पूछोगे, तो वो आपको असलियत में बता पाएंगे कि जो इंसान की ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की थी, आज 12 घंटे ड्यूटी करना या 24 घंटे ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। आप जैसे मैं अभी नॉर्मल बैठी हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा क्लिनिक में बैठूंगी या हॉस्पिटल में बैठूंगी तो स्टेथोस्कोप लगा लूंगी, जैसे पहले किया करती थी। लेकिन अभी क्या है, पेशेंट्स आएंगे, डॉक्टर आर द फर्स्ट पीपल हु आर सिटिंग ओवर द बॉम्ब, लाइक वो इन्फेक्शन की बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, और कई तरीके के पेशेंट उनसे आते हैं, मिलते हैं, और हमको सबकी बातें सुननी भी है। तो क्या होता है, इन्फेक्शन डॉक्टर्स को ज्यादा पकड़ने के कैच करने का चांस होता है। अभी क्या है, कोविड की बात करें तो जो लोग, जिन डॉक्टर्स की आईसीयू में लगी है या जिनकी ओपीडी में भी ड्यूटी लगी है, तो क्योंकि आईसीयू में जाने से पहले तो डॉक्टर पेशेंट ओपीडी वाले डॉक्टर को मिलता है ना, तभी इन्फेक्शन का इतना चांस। आप खुद सोचो, आधा घंटा आप मास्क लगा लो, यू विल फील लाइक मुझे सफोकेशन हो रही है। अभी जो डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है या जो आईसीयू में ड्यूटी कर रहा है, पहले वो तो एक सिंगल 3 प्लाई मास्क लगाएंगे, फिर N95 लगाएंगे, उसके ऊपर भी मास्क लगा रहे हैं, फिर पीपीई किट पहन रहे हैं, फिर ग्लासेस पहन रहे हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी शील्ड्स आ रही हैं, फिर 3-4 लेयर तो ग्लव्स की पहन लेते हैं। सोचो आप एक सिंगल ग्लव पहनो, आधे घंटे तक आपको हवा ना लगे, तो हाउ विल यू फील? यू विल फील सफोकेटेड। अगर आप पिक्चर्स देखें डॉक्टर की, तो वो ऐसे हो जाते हैं, हाथ जैसे जैसे बहुत ऐसे चीजी काइंड ऑफ थिंग, आपके हाथ पसीना, मतलब डॉक्टर्स को भी चक्कर आना, घबराहट होना। लेकिन डॉक्टर्स अपनी ये सारी सिचुएशन को साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेंट को देख रहे हैं। ये था कि चलो पहले 8 घंटे ड्यूटी करनी है, अभी यू नेवर नो आपको कितनी देर तक हॉस्पिटल में रहना है। तो कई डॉक्टर्स तो ऐसे हैं कि बेचारे जो हफ्ते हफ्ते तक घर पे ही नहीं आते, और जब वो घर पे आते हैं तो फिर उनको क्वारंटीन में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो वहां से सेवा करके आए 10 डेज 15 डेज, तो यहाँ पे 15 डेज का क्वारंटीन, ताकि वो अपनी फैमिली को इन्फेक्ट ना कर दे। तो खुद सोचो कि अगर मैं ही बाहर से आ रही हूँ, या हम नॉर्मल मार्केट भी जाके आ रहे हैं और अपने बच्चे को हग नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते, उनके साथ पी नहीं सकते, हाउ इट फील्स, यू नो, इट फील्स लाइक यू आर अलोन। आपने इतने सारा कुछ पहन लिया, आपको सांस नहीं जा रही है, स्टिल यू आर डूइंग, और उतने पे भी अगर मतलब आप सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पा रहे, तो कितना एक डॉक्टर समझ सकता है जब वो हर टाइम हर दूसरे इंसान को मरते हुए देखता है। देखिए, किसी एक के घर वाले अगर खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो जाए, तो उनको कितना दुख होता है, और एक डॉक्टर जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के वहां पे खड़ा है, और मैं कहती हूँ 10 में से एक पेशेंट भी उसका एक्सपायर हो रहा है, तो उसको कैसा फील होता होगा। इट्स लाइक जैसे हमारा अपना कोई जा रहा है और 9 ठीक हो गए, डॉक्टर को उसकी खुशी नहीं होती, वो एक भी क्यों गया, डॉक्टर को इस फेलियर का बहुत बड़ा दुख होता है। तो ये जो दुख डॉक्टर को होता है ना, कि मैंने 9 को ठीक किया तो ये एक क्यों नहीं। कभी भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि ठीक है मेरा मतलब मेरा स्कोर इतना अच्छा हो कि चलो 1-2 एक्सपायर हो गए, 8 तो बचे। जो भी डॉक्टर हैं, जो भी इस वक्त वॉरियर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि हम 100% स्कोर बनाएं और 100% पेशेंट्स को घर भेजें। और अगर घर की बात की जाए तो चलो डॉक्टर की पर्सनल लाइफ तो इफेक्ट हुई, डॉक्टर्स के हस्बैंड की, डॉक्टर्स की वाइफ की, उनके बच्चों की,
और भी ज्यादा इफेक्ट हुई है। आप खुद सोचो, लोग होम क्वारंटीन में, या फिर उनको, हमारा लॉकडाउन था, अभी तो अनलॉक हो गया, पर अनलॉक होके भी ऐसा है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। कैसा फील होता है हमें जब अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाते, रिलेटिव से बात नहीं कर पाते, और हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, ऐसी चीजें जिनको आप हमेशा चाहते हैं कि हम हमेशा उनसे बात करें, और जब आपके पेरेंट्स जो भी डॉक्टर हैं वो घर पे आते हैं और आप उनसे बात नहीं कर पाते, ये एक बहुत दैट इज लाइक हार्ट ट्रेंचिंग सिचुएशन होता है उस टाइम पे। Yeah, true. मतलब I can't even imagine कि they are like पूरे Yeah, I'm telling you, I'm having goosebumps. एक्चुअली मतलब हम लोग ऐसा पूरा कवर भी हो गए तो इट्स लाइक फुल सब हो गया, अरे फैन लगाओ, खा लो, निकालो निकालो। तो आई कैन इमेजिन हाउ दे आर डूइंग ओवर देयर। तो अभी फिलहाल मतलब ऐसे मतलब सुनने में भी आ रहा है कि मतलब लाइक ड्यू टू कोविड मोस्ट ऑफ क्या हो रहा है कि जो लोग पीपल दे आर गेटिंग फ्राइटेंड अबाउट इट। शुड वी टेल डॉक्टर्स और शुड वी टेल एनीवन दैट वी आर हैविंग द सिम्पटम्स? बट वो मतलब पता नहीं, मतलब दे आर फ्राइटनिंग कि नहीं हमको ले जाएंगे, फिर ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, फिर क्या होगा। ये सब चीजें माइंड में बहुत मतलब बहुत आगे की सोच आ जाती है लिटरली कि हाँ मैं अगर मैं गया उस सिचुएशन में तो फिर क्या होगा मेरे फैमिली का। तो मतलब इसके ऊपर आप कुछ उनको थोड़ा सा गाइडेंस देंगे कि हाउ यू शुड टैकल सी, सबको पता है कि कोविड का मतलब कितनी खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कोविड को जैसे एक तरीके का हवा सा बन गया मार्केट में, इतना सुन के, इतना न्यूज देख के। कोविड भी एक नॉर्मल वायरस, कोल्ड एंड फ्लू की तरह है, बस ये है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम है, आपको 99 फीवर है, आपको थोड़ा बॉडी क्या मैलेस फील कर रहे हो, लिथार्जी फील कर रहे हो, तो कोई वरी की जरूरत नहीं है। आपकी रनिंग नोज है, आपको स्पुटा मारा है, मतलब आप कफ कर रहे हैं, आपको बलगम हो रही है, देयर इज नो नीड टू वरी। जो कोविड का सबसे बड़ा साइन है वो है हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, फिर लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, और उसके साथ साथ इंसान अपनी जो ब्रीद होती है ना, सांस होती है, उसको होल्ड नहीं कर सकता, उसमें ड्राई कफ रहेगा। और ड्राई कफ में भी क्या, वो खांस नहीं सकता तो करेगा ना वो, इससे ज्यादा वो उसको लगेगा मैं कुछ बलगम निकालूं अंदर से, पर निकलता नहीं। जब ऐसा कुछ होता है तब वो एक थोड़ी डरने की सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए। और जैसे हमारी पहले हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने बताया था कि पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा रखना चाहिए। अगर आपका सैचुरेशन रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट 95 से नीचे जा रहा है, देन यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन। अंटिल अनलेस आपको कोई इस तरह के सिम्टम नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट आप अगर एसिम्प्टोमेटिक भी है या नहीं भी है, या आपको कोविड पॉजिटिव आ गया, सबसे पहले आपको काम रहना है। बिकॉज ये जो चीज है ना, ईश्वर ने जो हमें ब्रेन दिया है, इसमें सबसे पहले नेगेटिविटी आ जाती है। वंस यू थिंक अबाउट कोविड, या हमें नहीं, हमारे पड़ोसी को ही हो गया, तो हम सबसे पहले पता है उसकी अर्थी के बारे में सोच लेते हैं, अब वो मरा है ना। लोगों को ऐसा लगता है अब उसको ऐसा हो गया, अब मतलब दूर से ही मैंने लोगों का देखा है कि लोगों को अगर कोई वैन में डॉक्टर्स मतलब आते हैं, एम्बुलेंस आती है, उनको लेके जा रहे हैं, वट एवर, कोई गाड़ी से लेकर जा रहा है अपने, तो लोग ना बहुत ऐसी अजीब निगाहों से देखते हैं, जैसे कोई जेल में ऐसे बंद करके किसी बंदर को रखा गया है, या किसी जानवर को देखने के लिए हम चिड़ियाघर में गए, वो एक अलग सिचुएशन सी क्रिएट हो जाती है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी, प्लीज ऐसा भी है मत कीजिए, वो भी हमारा ही हिस्सा है, हम उनके साथ हैं, हमें उनके साथ हैप्पी रहना है, कामनेस दिखानी है। और मान लो आपके नेबर में ही है किसी को कोविड, या फैमिली में ही है, तो आप सबसे पहले शांति मेंटेन कीजिए, और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करो, और साथ में मेडिकेशंस वगैरह करते रहना चाहिए। वेरी ट्रू, ये जानना बहुत जरूरी था बिकॉज लाइक जो भी देखेगा दे विल 100% अश्योर दैट दे विल गेट हील्ड, नहीं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू शुड बी काम एंड बी पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, और पॉजिटिव रहने के साथ साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि जिसको भी लगता है ना, ऐसे ही दिमाग में ख्याली पुलाव भी आ जाते हैं कि मैं बाहर गया था, मुझे कोविड तो नहीं हो गया, मुझे कोविड तो नहीं हो गया, मतलब ये एक ऐसा रहता है इंसान को। और अभी क्या है, मार्केट में ये भी न्यूज चल रही है कि टेस्ट कराना बहुत मुश्किल है, आपको बेड नहीं मिल रहा हॉस्पिटल में। तो एक बहुत ही छोटा सा आसान टेस्ट है जो आप घर में कर सकते हैं। आप एक स्टॉप वॉच ले लो, आपके मोबाइल में भी रहता है, आप उस टाइमर ऑन कर लो, आप एक लंबी डीप ब्रीथ लो, रोक लो, आप उसको आराम से, एक हेल्दी इंसान उसको 45 टू 1 मिनट, 45 सेकंड से 1 मिनट तक आराम से रोक लेता है। कुछ लोग 30 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आराम से अपनी ब्रेथ को होल्ड कर पा रहे हो ना, तो देयर इज नो थिंग टू टेक टेंशन कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोविड वाला पेशेंट ना अपनी सांस को 3-4 सेकंड से ज्यादा रोक ही नहीं सकता, ये भी मुश्किल हो जाता है उसके लिए।
ऐसी सिचुएशन हो जाती है उसके लिए, है ना। और अगर हम सांस रोक पा रहे हैं और इस प्रैक्टिस को आप दिन में 3-4 बार करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। हर बार आप मार्किंग कर लो, एक बार मैंने इतनी सेकंड रोकी, नेक्स्ट टाइम इतनी, अगर तो वो मतलब उसका रेशो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तब तो आप वरी करो कि यार कल 45 था, आज मैं सिर्फ 20 सेकंड ही रोक पाया, कल 45 रोका था, आज 15 सेकंड, तब आपको वरी की जरूरत है। लेकिन आपने 45 किया, नेक्स्ट दिन 40 किया, फिर 45 किया, 35 किया, 45 किया, इसके बीच में आप रेंज कर रहे हो या 1 मिनट तक रेंज कर रहे हो, मतलब 45 सेकंड और 1 मिनट के बीच में रेंज करो, देयर इज नो नीड टू वरी, आपको कोविड नहीं है। मतलब मार्केट में बहुत कुछ है प्रिवेंटिव मेजर्स की हम क्या कर सकते हैं, हो गया है तो क्या करें, नहीं हुआ प्रिवेंटिव होने की, लेकिन लोगों में कोविड के सिम्टम्स को लेके अवेयरनेस नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम रहना है, और फर्स्ट ऑफ सेकंड थिंग कि आप अपना ये छोटा सा प्राणायाम वाला टेस्ट करते रहें, और आप अगर आप अपना ब्रेथ होल्ड कर सक रहे हैं तो उसका मतलब आपको कोविड बिल्कुल भी नहीं। वेरी ट्रू। देन अगला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि व्हाट चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू शुड कम इन दिस प्रोफेशन, मतलब क्या चेंजेस आने चाहिए इस प्रोफेशन के अंदर, आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? See, first of all, देखो we are also human being। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट कॉलर जॉब है, लेकिन लोगों में एक बड़ी मैंने सुना है रिव्यूज में कि शी चार्जेस अ लॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो डॉक्टर्स की ना सैलरी हाइक होनी चाहिए। डॉक्टर्स, अभी तो कोविड है, आप वैसे भी देख लो, कभी कोई सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन हो सकता है किसी डॉक्टर को, नॉर्मल पेशेंट से भी इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि जानलेवा होता है डॉक्टर्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अपना इतनी मेहनत करते हैं, पहले 5-5.5 साल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद वो अपना इतना टाइम दे रहे हैं, रातों को भी देखो, जिनकी नाइट ड्यूटी नहीं होती है नॉर्मल ड्यूटी वालों की, तो वो 8 से 9 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, घर आ जाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता, चाहे वो मेल डॉक्टर हो चाहे फीमेल डॉक्टर हो, अगर आपके पास पेशेंट आ गया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आपको जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट के अंदर, हमारी सोशल लाइफ के अंदर, सोसाइटी के अंदर डॉक्टर्स के प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट और ज्यादा होना चाहिए। डॉक्टर्स के पास और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लाइक डॉक्टर्स को स्पेशली क्या होता है कि हम +2 के बाद से बिल्कुल ही अपने मेडिकल प्रोफेशन में घुस जाते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने ऐसा नोटिस किया कि डॉक्टर्स उतने ज्यादा कंपैरेटिवली टेक सेवी नहीं होते। मतलब आज की डेट में बहुत सारे डॉक्टर्स, हालांकि खुद मैं भी टेक सेवी हो रही हूँ, लेकिन देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो अभी डॉक्टर्स के लिए एक्सप्लोर करना थोड़ा सा बाकी है, कि हमें टेक्नोलॉजी का एक एक्स्ट्रा सिखाना चाहिए। ड्यूरिंग जब हम अपनी स्टडीज कर रहे हैं, उस टाइम पे हम अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। सैलरी हाइक होना चाहिए, और डॉक्टर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ना एक इंश्योरेंस सर्विस एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आपने बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट्स को ठीक किया, बहुत अच्छी बात है, एक भी पेशेंट आपसे कुछ भी हो गया ना, मैं उसके लिए वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आप न्यूज में देखना, लोग पूरा पूरा हॉस्पिटल बर्बाद करके चले जाते हैं। डॉक्टर्स अपनी अपनी सिक्योरिटी खुद करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि देयर शुड बी अ गवर्नमेंट रूल, और हमारे जो भी मतलब हाई कोर्ट है, उनको ऐसे रूल लागू करने चाहिए जो कि स्पेशली डॉक्टर्स को बचाए रखने के लिए होना चाहिए, कि अगर किसी भी डॉक्टर के साथ कोई भी नॉर्मल पब्लिक कोई भी हरासमेंट करती है या कुछ ऐसा करती है, तो उसके लिए एक प्रावधान होना चाहिए, कि एक एक्ट होना चाहिए कि अगर ऐसा किसी डॉक्टर के साथ होता है तो क्या होना चाहिए। और क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में ना डॉक्टर्स के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होने चाहिए। बाकी कई सारे मतलब प्राइवेट लोग हैं जो ऐसे एप्स डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं, क्योंकि देखो अभी ग्लोबल टाइम आ गया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि अंटिल सर्जरी का केस नहीं है, डिलीवरी का केस नहीं है, जहाँ पे आपको फिजिकली टच करने की जरूरत है, जहाँ पे आपको फिजिकली टच करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑनलाइन कंसल्टेंसी बहुत अच्छी जा रही है। मैं खुद भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी करती हूँ, तो जस्ट गिव मी अ सेक, कैन आई? एक्चुअली इट इज हेलो, रिकॉर्डिंग। मैं 5 मिनट मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। तो क्या होता है कि इस तरह की ऑनलाइन सर्विसेज आनी चाहिए जहाँ पे एक डॉक्टर बड़े आराम से और एक पेशेंट कंफर्टेबली, पेशेंट को भी वेट ना करना पड़े और डॉक्टर भी अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से उनको देख सके, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक कर सके और उन्हें एडवाइस कर सके। वेरी ट्रू। और डॉक्टर्स के लिए भी या सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए साथ में। वेरी ट्रू। हालांकि लाइक कुछ मंथ पहले जैसे कि कोविड वाज स्लोली स्टार्टेड थी, मतलब कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो फिर तब गवर्नमेंट हैज मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किए थे बहुत सारे कॉम्पिटिशंस लाइक वेयर यू कैन bring solutions for this thing, you know. तो
तो उसमें भी काफी सारे थे कि जो हॉस्पिटल को लेके, उसमें से मैं भी एक थी हालांकि, जिसमें ऐसा हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, मतलब हुआ क्या था एज पर न्यूज एंड एवरीथिंग, बिकॉज उसके अलावा हमारे पास कुछ सोर्सेज नहीं था कि टू गेन की प्रॉब्लम क्या हो रही है हॉस्पिटल। तो वी थॉट ऑफ काइंड ऑफ एक एप्लीकेशन बनाए जिसमें हॉस्पिटल्स एंड सब जो फार्मेसी वो सब होते हैं, तो सबको इंटीग्रेट करके इवन द गवर्नमेंट, बिकॉज हालांकि हुआ क्या है कि गवर्नमेंट के पास काउंट नहीं जा रहा है कि उनको कितना रिक्वायरमेंट है चीजों का। तो फॉर दैट बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म। और दूसरी चीज ऐसी थी उसके अंदर कि जो पेशेंट है जिसको क्वारंटाइन किया गया है, either he is in hospital or he is at home, but mostly तब everyone was in hospital. So what we did was that उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल की तरह कि the doctors could communicate directly with the family. जो रिपोर्ट है, टेस्ट के रिपोर्ट है, वो डायरेक्टली उसके फैमिली को मेल के थ्रू भेज दिए जाएंगे। तो इस वजह से होता क्या था कि द डिस्टेंस बिटवीन, तो दिस वाज द थिंग, मतलब आपने ऐसे बोला तो इसलिए फिर आई फेल्ट लाइक टेलिंग यू द आइडिया कि वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट, इसलिए ये जल्दी से जल्दी हो जाए। Thank you. So And this is a very big demand right now. yeah, right. So like the next thing is that how you see the future of doctors in our country, सी अगर मैं बात करूं फ्यूचर अपनी कंट्री में, तो आज की डेट में जैसे हमारे मोदी जी ने, हमारे पीएम ने बोला है कि लोकल को वोकल बनाना है, तो ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। और इसी बेस से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स की भी सिचुएशन काफी अच्छी होने वाली, क्योंकि आजकल जैसे आप कोविड के दौरान ही देखें, मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में कि मास पब्लिक ने मिलकर कभी थाली बजाई हो या थैंक यू के लिए कुछ किया हो या स्पेशली ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल गिराए हो। लाइक उस टाइम जब ऐसा हो रहा था ना, दैट वाज अ वंडरफुल फीलिंग, और मेरे आंखों में तो पर्सनली आंसू आ गए थे। मतलब पहली बार वैसे आप किसी की डिलीवरी करवाते हैं, बेबी होता है घर में, बहुत लोग खुश रहते हैं, थैंक यू करके चले जाते। कभी भी कोई भी डॉक्टर, मतलब पेशेंट ये नहीं चाहता कि मुझे डॉक्टर से मिलना पड़े या स्पेशली उनका मास थैंक यू किया जाए। लेकिन इस दौरान जो हुआ, तो और लोग ना इस टाइम पे अवेयर हुए हैं। और एक सिचुएशन में आपको काफी अवेयर हुआ। अगर हम आज अपनी इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, तो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से पर 1000 पीपल के ऊपर एक डॉक्टर है। और अगर मैं डॉक्टर्स का फ्यूचर देखूं, तो आने वाले 2030 तक हमें 2.7 मिलियन डॉक्टर्स की जरूरत आने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और आई एम प्रिटी श्योर कि हमारी गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए और भी बहुत कुछ करने वाली है, और करेंगी भी। एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ा और बाइफर्केशन होगा, थोड़ा सा और इस पे नॉलेज होगी। द ओनली थिंग विच आई एम वरीड अबाउट, कि मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ना गूगल के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको लोग पढ़ लेते हैं डालें, लेकिन साथ में डिस्क्लेमर भी होना चाहिए कि भाई ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये उन लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने डाल दिया। बिकॉज गूगल पे जो जितना भी मटेरियल है वो इतना ज्यादा वास्ट हो जाता है कहीं ना कहीं जाके, कि वो लोगों को बहुत इम्पैक्ट करता है। हालांकि मैंने अपने क्लिनिक के बाहर ही लिखा रखा है कि प्लीज गूगल से पढ़कर तो बिल्कुल कंसल्टेशन लेने मत आना, क्योंकि फिर लोगों में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, व्हाई इट इज सो, व्हाई इट इज सो। मतलब आपको, अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए एक डॉक्टर से, तो सबसे पहले आपको उसमें फेथ, मैं बिलीव नहीं कहती, मैं तो फेथ कहती हूँ कि आपको फेथ दिखाना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए बहुत ब्राइट है। और जो मैंने आपको पीछे बोला था कि सैलरी हाइक होनी बहुत जरूरी है, तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि होगा, क्योंकि अभी लोग अवेयर हो गए हैं कि डॉक्टर्स भी अपनी लाइफ को लेके बहुत रिस्क पे रहते हैं हमेशा। वी ऑल्सो नीड सिक्योरिटी। तो ये बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर अच्छा है हमारा, काफी ब्राइट है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे आयुष मंत्रालय से और भी ज्यादा उम्मीद है कि चलो एलोपैथी तो शुरू से ही फ्लरिश कर रही है, आयुर्वेद को भी अभी काफी अच्छा बूम मिल रहा है, तो इट्स गुड। तो और मैं टेक्नोलॉजी के साथ टेक सेवी भी देखती हूँ डॉक्टर्स को। मतलब आपके व्यूज क्या है? लाइक अभी जैसे एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एवरीथिंग, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मतलब जो स्टूडेंट्स है जो मेडिकल पढ़ रहे हैं उनको मतलब लाइक टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी साथ में दिया जा मतलब देना चाहिए या नहीं, इंक्लूडिंग इन द करिकुलम? बिकॉज एज वी सी द टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, तो
उनको उसके साथ कोप अप करने के लिए कि सब कुछ इंटीग्रेट करके उनको देना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सी जो नई जनरेशन आ रही है ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी हाईटेक, मैं बताऊं, क्योंकि स्टूडेंट को बचपन से ही कंप्यूटर वगैरह पढ़ाने की हैबिट है, पीपीटी वगैरह बच्चे अच्छे से बना लेते हैं. हाँ, जो करंट, जो ये वाली जनरेशन जो अभी एम्प्लॉयमेंट में है, जो एम्प्लॉय है डॉक्टर्स, उनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है इसका. क्योंकि उस टाइम पे जब हमने डिग्री की थी तो सिवाय डिग्री के हमें टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं पता था. स्पेशली क्योंकि कंप्यूटर्स की भी अगर हम हिस्ट्री देखें 20 साल पहले या 26 साल पहले, 30 साल पहले इतना टेक सेवी नहीं था हमारा इंडिया. डॉक्टर्स की तो बात ही छोड़ो. धीरे धीरे हम लोग भी टेक सेवी हो रहे हैं. लेकिन हाँ, कुछ एक चीजें मैं जरूर चाहूंगी कि गवर्नमेंट इंक्लूड करे कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जो जो भी हम अपनी फिजिकल बुक्स पढ़ रहे हैं, इनकी ई बुक्स भी हो, ई बुक्स हैं भी हालांकि, साथ में टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू उन्हें अच्छे से कराएं कि वो अपनी नॉलेज को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं. आई वेरी मच अप्रिशिएट अगर ऐसा कुछ होता है. हालांकि डॉक्टर्स का सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, लेकिन अगर इंसान इतना वास्ट पढ़ सकता है तो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी पढ़ सकता है. मैं ये नहीं कहती कि उसमें डीप घुस जाए, बट हाउ टू यूज दैट थिंग, ये आना चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मतलब जो आई कैन से हैकर्स रहते हैं, जो भी रहते हैं, तो वो अटैक जो रहते हैं, दैट दे शुड बी अवेयर कि हाँ भाई, ये इट इज नॉट समथिंग सस्पिशियस इन देयर, सो वी शुड गो फॉर दैट और नॉट. तो इवन आई पर्सनली थिंक कि मतलब एज मैं वही कह रही हूँ ना. या हाँ नहीं, मैं वही कह रही हूँ, जैसे अभी मेरा बच्चा है, ही इज इनटू 6th क्लास, है ना. अगर मैंने अपना मतलब अपने लैपटॉप पे कुछ 2-4 विंडोज खोल के रख दिए और उसको ऐसे ही शट डाउन कर दिया, तो ही विल चेक इट आउट एंड ही विल से मम्मा कोई भी आपको हैक कर सकता है, पहले सारे स्लाइड्स को, सारे बार्स को खत्म करो, फिर लॉग आउट करो, फिर करो. तो ये सब चीजें अगर हम एक नॉर्मल डॉक्टर को या एक नॉर्मल आने वाली जनरेशन, तो मैं ऑलरेडी कह रही हूँ हाईटेक होगी, लेकिन जो अभी चल रही है उसके लिए बहुत जरूरी है. So with this, I like my last question to you is that any message to our viewers on National Doctors Day? आप देना चाहेंगे? See, first of all, I would like to thank you, all viewers जिन्होंने हमारी बातें सुनी, और I hope उनको आप फॉलो भी करोगे. और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको बता, और बार बार हर बार ये बताती हूँ कि कोविड पेंडेमिक के बारे में सब जानते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग पैनिक मत कीजिए, क्योंकि पैनिक करने से सिचुएशन और खराब हो जाती है. और अगर अनलॉक हो भी गया है तो भी आप अपनी केयर उसी तरीके से करिए जिस तरीके से आप लॉकडाउन में कर रहे थे, क्योंकि अनलॉक हुआ है इसलिए कि हम देख सके, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड कैसे कैसे बढ़ जाता है और कैसे कैसे सिचुएशंस खराब हो जाती हैं, ये डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, रादर देन वो जो सिर्फ और सिर्फ वॉक में देखती हूँ बाहर लोग घूमने के लिए निकल जा रहे हैं, बच्चों को विदाउट मास्क खेलने भेज रहे हैं. लेकिन आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनी फैमिली में से किसी को खो दिया है, या जिनकी फैमिली में कोई होम क्वारंटीन है, या जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, वो आपको वो रियल सिचुएशन बताएंगे, या वो डॉक्टर्स ही आपको वो रियल सिचुएशन बताएंगे जो कि वो फेस कर रहे हैं. क्योंकि जिन्होंने फेस नहीं किया उनके लिए तो ऐसे ही है कि बस डरा रहे हैं मार्केट में, लेकिन डरने वाली बात भी है थोड़ी बहुत. मैं ये नहीं कहती कि आप दुबक के अपने घर में बैठ जाइए, पर हाँ, जब तक जरूरत नहीं है तब तक आप मत बाहर जाइए. और यंगस्टर्स की जो इम्यूनिटी होती है वो फार बेटर होती है एल्डर पेशेंट से, जो 60-70 के हो जाते हैं, या छोटे बच्चों से. तो छोटे बच्चों को हम घर में भी इंडोर गेम्स वगैरह खिला के, थोड़ी वीडियो गेम खिला के 1 घंटा, बाकी उनकी क्लासेस होती हैं, फिर उनको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करा के हम बिजी कर सकते हैं. लेकिन अगर घर का यंग ही नहीं मानेगा, जो कि यंगस्टर्स तो हमारे देश के भविष्य हैं, तो अगर उनको वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सिचुएशन और खराब हो जाएगी. तो सबसे पहले मैं अपने यंगस्टर्स को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने अब तक अपने आप को संभाला है. लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपना उतना ही ख्याल रखिए जितना आप लॉकडाउन 1 में रख रहे हैं. Very true. So I would like to thank you first of all taking out time from your busy थैंक यू. schedule. यहाँ पे आने के लिए, अपने व्यूज रखने के लिए, and to enlighten our viewers. So I would like to thank you first and my viewers who will be watching this. And this was excellent session. मुझे भी मतलब like I got to know things which I was not knowing about, like how to tackle and how to मतलब examine करना चाहिए कि how COVID can be affected or not. So this was an amazing session. So thank you for joining us today. So for our viewers, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and keep loving us and
safe. Stay happy. Thank you so much all.